خبروں کی تفصیل میں سب سے پہلے بات کریں گے بارش کے حوالے سے۔ کل کی بارش کا پانی نہیں نکلا، نیا اسپیل شروع ہو گیا۔ کل سے بارش جاری ہے، دن بھر بارش رہی، رات میں پھر بارش ہو رہی ہے۔ کراچی میں مانسون کا طوفانی اسپیل، آندھی طوفان کے ساتھ بارش، تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ صورتحال اور خطرناک ہو گئی۔ ماڈل کالونی، اورنگی، ڈیفنس کلفٹن میں گرج چمک کے ساتھ بارش، صدر میں بھی آندھی طوفان کے ساتھ بادل برسے، آئی چندریگا روڈ پر بھی موسلادھار بارش، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور ایئرپورٹ کے اطراف بھی خوب بادل برسے۔ وزیر اعلیٰ نے نالوں کی صفائی نہ ہونے پر تنقید مسترد کر دی۔ مراد علی شاہ تیز بارش کے باعث تعطیل کے باوجود شہریوں کے گھروں سے نکلنے پر بھی ناراض۔ مختلف علاقوں کے دورے کے دوران کہا، شہر میں نالے صاف تھے تو پانی نکل گیا، 100 ملی میٹر بارش سنبھالنے کے لیے پورا کراچی کھودنا پڑے گا۔ مزید اس رپورٹ میں۔ کراچی میں تیز بارش، وزیر اعلیٰ کا میئر کراچی اور وزراء کے ہمراہ کراچی کا طوفانی دورہ۔ مراد علی شاہ نے بارش سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا اور بریفنگ بھی لی۔ میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے نالوں کی صفائی نہ ہونے پر تنقید مسترد کی۔ بولے، شہر میں نالے صاف تھے تو پانی نکل گیا، 100 ملی میٹر بارش سنبھالنے کے لیے پورا کراچی کھودنا پڑے گا۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا، کراچی کی جو آپ مہینے کی بارش دیکھیں نا، تو اگست کے مہینے کی میں بات کر رہا ہوں، ہسٹوریکلی 2 سے 3 ملی میٹر بارش ہوتی ہے اور جو بڑی بارش کہلاتی ہے وہ 30 ملی میٹر ہوتی ہے۔ اب آپ زیادہ سے زیادہ اسی ڈیزائن پہ کرتے ہیں، آپ یو ڈو ناٹ ڈیزائن فور 100 ملی میٹر این آور، اس لیے کہ وہ آپ کر نہیں سکیں گے۔ کہنا بڑا آسان ہے، پورا کراچی کھودنا پڑے گا دوبارہ، آپ نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ تیز بارش کے باعث شہریوں کے گھروں سے نکلنے پر بھی ناراض ہوئے۔ بولے، جب چھٹی دی تھی تو شہریوں کو نکلنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ آپ کو رکنا پڑتا ہے بارش ختم ہو۔ شہریوں سے یہی ریکویسٹ کل بھی کی تھی اور میں نے کہا نا کہ اس کا فرق کوئی نہیں پڑا کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں، اب ایک دن کی بات کی تھی۔ مراد علی شاہ نے شارع فیصل، فیریئر ہال کے اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا۔ صوبائی وزراء اور محکموں کو بارش کے دوران نکاسی آب اور شہریوں کی مشکلات کم کرنے میں مدد کی ہدایت کی۔ میئر کراچی کی پریس کانفرنس کے دوران تیز بارش، وہاں بولے، بارش کے بعد مجھ پر سیاسی گولہ باری کی گئی، تنقید کرنی ہے تو ضرور کریں، مگر موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنا بڑا چیلنج ہے۔ تیز بارش رکتے ہی انتظامیہ متحرک ہوئی، 40 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوگی تو اثر تو آئے گا۔ انہوں نے کیا کہا، یہ جانتے ہیں۔ گلوبل وارمنگ، کلائمیٹ چینج ایک حقیقت ہے۔ شہر کی عوام کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہیں پر تنقید بھی سٹارٹ ہوئی۔ 40 ملی میٹر کراچی شہر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے بارش کے پانی اٹھانے کی، 235 ملی میٹر اور 40 ملی میٹر میں 8 گنا ڈفرنس ہے، اس کا ایک سپل اوور افیکٹ۔ شہر میں اربن فلڈنگ کی صورتحال، کراچی پولیس چیف کا افسران کے ہمراہ کورنگی کے مختلف مقامات کا دورہ، کہا پولیس کے جوانوں نے درجنوں گاڑیوں کو ٹھیک کر کے شہریوں کی مدد کی۔ سلمان سلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ شہر قائد میں طوفانی بارش، اربن فلڈ جیسی صورتحال پر پولیس بھی متحرک۔ کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈو کا افسران کے ہمراہ کورنگی کے مختلف مقامات کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو میں جاوید عالم اوڈو نے کہا، شہر میں بارش کے پیش نظر پولیس الرٹ ہے، بارش کے باعث سڑکوں پر پھنسے شہریوں کی مدد کی جا رہی ہے۔ تمام ایس ایس پیز فیلڈ پر موجود ہیں، جبکہ نفری کو بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ روز بھی شہر بھر میں 10,000 سے زائد پولیس اہلکار سڑکوں پر موجود تھے۔ تقریباً 10-11,000 کے قریب نفری پوری رات لگی رہی ہے۔ تھوڑی سی جو اس مرتبہ پریشانی کا سبب بنے وہ جو کھدائی ہوئی تھی، خاص طور پہ سوئی سدرن گیس والوں کی، تو روڈ کافی کیون کر گیا، کافی جگہوں سے نیچے بیٹھ گیا اور زیادہ پانی میں وہ نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے کافی گاڑیوں کو حادثات ہوئے۔ جبکہ ڈی سی کورنگی مسعود بھٹو نے بتایا کہ کورنگی میں ندی کا پانی کم ہوتے ہی کازوے کو کھول دیا جائے گا۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ کورنگی کازوے اور ای بی ایم کازوے وہ ہم نے کل سے بند کیا تھا، کیونکہ وہاں خدشہ تھا کہ کوئی انٹورڈ انسیڈنٹس نہ ہو جائے، تو جس کی وجہ سے وہ ہم نے بند کر دیا تھا۔ اور اب ہم نے وزٹ کیا ہے تو کورنگی کازوے تو آلموسٹ کلیئر ہے، وہاں اب اتنی رسک نہیں ہے جتنی رات کو رسک تھی۔ تو کورنگی کازوے بھی ہم نے ابھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ آج ہم کھول رہے ہیں، اگر رات کو پانی پھر بارش پھر ہو جاتی ہے تو پھر ہم اسے بند کر دیں گے۔
इस मौके पर पुलिस चीफ जावेद आलम ओडो और डीसी कोरंगी ने पुलिस और अमले को अलर्ट रहने की हिदायत की और कहा कि बारिश के मौसम में शहरियों की हर मुमकिन मदद की जाए। कैमरामैन नवीद के साथ सलमान सलीम, सिटी 20। वेलकम बैक। कल की बारिश का पानी निकला नहीं, नया स्पेल शुरू। कल से जारी बारिश, दिन भर बारिश और रात में फिर बारिश हो रही है। कराची में मॉनसून का तूफानी स्पेल, आंधी तूफान के साथ बारिश, तेज हवा और गरज चमक ने सूरत हाल और खतरनाक बना दी है। मॉडल कॉलोनी औरंगी डिफेंस क्लिफ्टन में गरज चमक के साथ बारिश, सदर में भी आंधी तूफान के साथ बादल बरसे। आई चंडीगढ़ रोड पर भी मूसलाधार बारिश, नाज़िमाबाद, नॉर नाज़िमाबाद और एयरपोर्ट के अतराफ भी खूब बादल बरसे। सूरत हाल से आगाह करेंगे मुबशर हुसैन, सलमान सलीम, शायान अली, राहील बेग, मुमताज शिगरी और शुएब मुख्तार। जी आगाह कीजिएगा। अमीनाबाद में धमाके से सियासी जमात का दफ्तर जमीन बोस हो गया। वाकई की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और कानून नाफिज करने वाले इदारे कल की बारिश का पानी निकला नहीं, नया स्पेल शुरू हो गया है। हमारे नुमाइंदगान आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हैं। शुएब मुख्तार, शायान अली, मुमताज शिगरी और इसके अलावा हमारे दीगर नुमाइंदगान जो हैं वो इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों पर मौजूद हैं। मुबशर हुसैन, सलमान सलीम, शायान अली, राहील बेग, मुमताज शिगरी, शुएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शायान अली का रुख कर लेते हैं, सबसे पहले उनसे जानेंगे। शायान, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त, बारिश की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मानसून के नए स्पेल का आगाज़ हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ जो है खूब बादल बरसे और आज भी जो है वक्फे वक्फे से बारिशें जारी है। सुबह के वक्त में भी जो है तेज़ बारिशें मुख्तलिफ इलाकों में जो हुई है, जबकि अगर मैं बात करूँ तो अब से कुछ देर कबल भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है। और अगर मैं आदाद व शुमार की बात करूँ तो महकमा मौसमियात की जानिब से जो है आदाद व शुमार के जो रिकॉर्ड जारी कर दी गए और सबसे ज़्यादा बारिश जो है शारा फैसल पर 19 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है, जबकि औरंगी टाउन में 15, जिना टर्मिनल पर जो वो 11.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि किमाड़ी में 9, डिफेंस फेज 2 में जो वो 8 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो यूनिवर्सिटी रोड पर जो है 7.6 मिलीमीटर, जबकि कोरंगी में 6.8, जबकि एयरपोर्ट ओल्ड एरिया में जो है 5.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह अगर मैं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो नाज़िमाबाद और PAF मसरूर बेस जो के ईस्ट में पड़ता है, इसमें 2 मिलीमीटर, जबकि सुरजानी टाउन में जो है 1.8 मिलीमीटर बारिश हुई है। सबसे कम बारिश जो है नॉर्थ कराची में 1.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मौजूदा स्पेल है इसी तरह जो ये वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि इस वक्त भी जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की सी फुहार और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। मुमकिन तौर पर जो है रात के औकात में तेज़ बारिश हो सकती है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से जो पेशेनगोई की गई है कि 20 और 21 तारीख को तेज़ बारिश होंगी। इसी तरह जो है आज वक्फे वक्फे से जो है तेज़ बारिशें हुई है और मुमकिन तौर पर जो है कल भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो नया स्पेल है तकरीबन 22 से 23 अगस्त तक इसी तरह जारी रहेगा, जबकि इसके बाद जो है आने वाले माह में भी जो है इसी तरह मामूल से ज़्यादा जो है बारिशें मुतवक्के हैं। जी शायान अली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करेंगे सलमान सलीम का। सलमान, बताइएगा आप कहां पर मौजूद हैं, कैसी सूरत हाल देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल कराची शहर में बारिशों का दूसरा स्पेल आ चुका है और मुख्तलिफ मुकामात पर बारिशों का सिलसिला जारी है। कराची में गुज़िश्ता रोज जो बारिश हुई, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार, कार सवार शदीद परेशानी में मुब्तला हुए। मुख्तलिफ मुकामात पर हमने देखा कि मुतअद्दिद गाड़ियाँ जो है वो सड़कों के ऊपर फंस गई, जबकि सैकड़ों मोटरसाइकिलें सड़कों के ऊपर बंद हो गई, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो काफ़ी मुश्किलात उनको दरपेश आई। लेकिन हमने ये भी देखा कि कराची ट्रैफिक पुलिस और कराची पुलिस की जानिब से शहरियों की मदद भी की गई। इस वक्त अगर हम लोग सूरत हाल की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर वैसे ही पानी जो है वो जमा हुआ है, जबकि मुताबिक सड़कों के ऊपर से पानी को निकाल दिया गया है, लेकिन बड़े बड़े गड्ढे और जो अभी भी पानी मौजूद है वो शहरियों के लिए दर्द सर बना हुआ है। कराची के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर एडिशनल कराची जावेद आलम ओडो की जानिब से जो पुलिस एहलकार है, अफसरान है, उनको तैनात कर दिया गया है। तमाम जिले SSPs को हिदायत जारी की गई है कि तमाम SHOs को फील्ड पर उतारा जाए, जितनी भी नफरी है उनको रोडों के ऊपर खड़ा किया जाए ताकि शहरियों की मदद की जा सके। इस वक्त भी बारिश का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल जो है वो तेज़ बारिश हुई, अभी भी हल्की बारिश जो है वो जारी है कराची के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर। और जो ज़िला इंतज़ामिया है वो गुज़िश्ता रोज़ भी गायब दिखी और आज उनकी जानिब से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर काम किया गया। तो सड़कों जो ज़ेर आब आ चुकी थी
उनका पानी निकाला गया। लेकिन इस वक्त भी जो बारिश चल रही है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो ट्रैफिक पुलिस को भी अहकाम जारी किए गए हैं डीआईजी ट्रैफिक की तरफ से कि तमाम सड़कों के ऊपर मौजूद रहे जो कराची के अहम चौराहे हैं जिनके ऊपर पानी सबसे ज़्यादा जमा होता है वहाँ पर शहरियों की मदद को यकीनी बनाया जाए। साथ ही कराची के मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर पुलिस मोबाइलें और जो गेस्ट के ऊपर मामूल पुलिस एहलकार हैं उनको भी जो है वो ड्यूटियाँ उनकी लगाई गई हैं कि कहीं पर भी कोई शहरी कोई मोटरसाइकिल अगर फंसी हुई दिखे तो उसकी फौरन मदद की जाए, कोई गाड़ी अगर बंद हो तो उसकी फौरन मदद की जाए। तमाम कराची पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर पुलिस को जो है वो तैनात कर दिया गया है। जी ठीक है सलमान, आप भी हमारे साथ मौजूद रहिए। राहील बेग भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। राहील बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, कितनी बारिश हो रही है? जी बिल्कुल, कराची में आज होने वाली बारिश के बाद जो मौसम तो यकीनी तौर पर खुशगवार हुआ है, मगर कल की बारिश से अगर मवासना किया जाए तो आज सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। कल जो बादल बरसे हैं उसके बाद कराची के मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक जैम की सूरत हाल देखने में आई। उसके बाद मुख्तलिफ अंडरपासेस तालाब का मंजर पेश कर रहे थे, मगर आज की इस बारिश को देखें तो ट्रैफिक जैम की इस तरह से कोई भी सूरत हाल सामने नहीं आई। मेरे कैमरामैन शहरियार आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी अगर हम कयूमाबाद पर हैं, यहाँ पर ट्रैफिक जो की रवानी जो है बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। पानी जगह जगह रोड पर ज़रूर है, मगर उसके बावजूद भी जो ट्रैफिक की रवानी है वो बिल्कुल ठीक है। अगर कल की बारिशों को देखें, कल इस वक्त यहाँ पर इस रोड के ऊपर खड़े होना भी बहुत मुश्किल था। किसी बाइक पर, गाड़ी पर इस रोड से गुजरना तो दूर की बात, पैदल चलने के लिए भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। मगर आज भी बादल खूब ज़ोर से और जमकर बरसे हैं, गन चमक के साथ बारिश हुई है। उसके बाद मौसम भी खुशगवार है और लोगों की अगर हम बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है बेहतर है, कंट्रोल है। ट्रैफिक की जो रवानी की अगर बात करते हैं तो वो भी मामूल के मुताबिक है। जी ठीक है राहील, अब रुख करेंगे मुमताज शिगरी का। मुमताज बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं, रकासी आपकी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जिस तरह जो है गुज़श्ता रोज़ बारिश हुई, बारिश के बाद जो है जो ख़ास तौर पर सड़कें हैं वो जो है ज़ेर आब आ गई और तालाब बन गई है। इस वक्त मैं कराची के इलाके सदर में मौजूद हूँ और सदर के इस रोड पर जो है प्रॉपर ये एक तालाब का मंजर यहाँ पर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। ख़ास तौर पर जो शहरी यहाँ पे आ रहे हैं, मेरा कैमरामैन इस वक्त आपको दिखाएंगे, बिल्कुल मेन चौक पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरह जो है लोग यहाँ से चल के जा रहे हैं और अपनी गाड़ी को खुसूसन बाइक्स वगैरह लेके जा रहे हैं और काफ़ी मुश्किलात है। और प्रॉपर ये एक मेन एरिया है, ये तजारती हब है तकरीबन सदर कराची का, और यहाँ पर जो है मेन चौरंगी से लेकर चारों तरफ से जो है आने वाली सड़क पे, जाने वाली सड़क पे और अतराफ की सड़कें जो है प्रॉपर तरीके से डूबी हुई है। और शहरियों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमने जो है मुतल्लिका हुकाम तक जो है बात पहुँचाने की कोशिश की, मेयर से या जो टाउन इंतजामिया है उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर पानी अब तक नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि मेयर कराची और टाउन इंतजामिया को अगर जो है टाइम मिला तो आप यहाँ पे आ जाएं, इसको देखें और यहाँ से जो है जो पानी है, गटर का पानी है खासतौर पर और बारिश का जो पानी है वो तकरीबन मिक्स हो चुका है, इसको निकालें ताकि शहरियों के जो मुश्किलात है वो कम हो सके। ठीक है मुमताज़, आप हमारे साथ ही रहिए। शुएब मुख्तार भी हमारे साथ ही हैं, उनसे भी तफसीलात ले लेते हैं, वो कहाँ पर मौजूद हैं। बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है? और जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिशों का सिलसिला जो है जारी है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं, सुबह से जो है मुख्तलिफ इलाकों का दौरा कर रहे हैं और निकासी आपके कामों का जायज़ा ले रहे हैं। जबकि बल्दिया उस्मा कराची का महकमा एंटी इंक्रोचमेंट भी हमें काफ़ी सरगर्म दिखाई देता है। रात के इस पहर भी शाहीन कॉम्प्लेक्स पर शहरियों की खिदमत में महकमा एंटी इंक्रोचमेंट का अमला जो है मसरूफ़ है। सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट अम्मार खान यहाँ पर मौजूद है शाहीन कॉम्प्लेक्स पर, जो तमाम तर बारिश के बाद निकासी आपके कामों का भी जो है वो जायज़ा ले रहे हैं, जबकि शहरियों को रेस्क्यू करने के लिए भी यहाँ पर मौजूद है। अम्मार साहब क्या कहना चाहेंगे, कब तक यहाँ पर मौजूद रहेंगे? बारिशें तो अभी मज़ीद 2 से 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। तो देखो, आपका बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का भी शुक्रिया कि बारिश के इस मौसम में और इस घड़ी में आप लोग हमारे साथ खड़े हैं और ये भी कवर कर रहे हैं। देखें, हमें मेयर साहब की सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि किसी भी किस्म का आवाम को हमने रिलीफ देना है। अगर यहाँ पे कोई स्टक हो जाता है, कोई परेशान हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग सारे यहाँ पे हमारी टीम मौजूद है। सारी डिस्ट्रिक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेयर साहब ने हर डिवीज़न में, हर सब डिवीज़न में हमारी जो है टीम्स को पॉइंट पे रखा हुआ है सबको।
यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो खड़े हुए हैं, सारा जो बारिश का पानी है इसका फ़्लो देख रहे हैं, ट्रैफिक फ़्लो ना रुके, किसी किस्म की आवाम को अगर कोई फंस जाता है, कोई दुश्वारी पेश आती है, उसके लिए हमारी सारी टीम भी मौजूद है यहाँ पे, हमारे ट्रक्स और हमारी सारे इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद है कि किसी किस्म का भी हमने रिलीफ देना है तो ऑन स्पॉट हम लोग खड़े हुए हैं यहाँ पे। और जी बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है सिटी वार्डन्स भी मौजूद हैं जो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए अपना काम जो है वो सरअंजाम दे रहे हैं। इस वक्त जो है शाहीन कॉम्प्लेक्स के इतराफ और सदर व दीगर इलाकों में भी जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी है। जी ठीक है शुएब, अब रुख करेंगे मुबशर हुसैन का। मुबशर बताइएगा, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ की सूरत हाल कैसी है? अच्छा, बिल्कुल जैसा कि कहीं हल्की कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है और महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी कि 22 अगस्त तक इसी तरह जो है वो बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। मैं इस वक्त कोरंगी के मकाम पर मौजूद हूँ और बेशतर मकामात पर इसी तरह बारिश का सिलसिला जारी है। पानी दर्जनों से ज़ायद मकामात पर ज़ेर-ए-आब आ चुका है। इंतज़ामिया के जो दावे किए गए थे बारिश से कबल वो बेसूद जो है वो साबित हुई है। इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर मंजर से गायब है। साथ ही अगर बात की जाए पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस और दीगर फलाई इदारों की, तो वो अपना जो है वो किरदार अदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहरी जहाँ घंटों से मुख्तलिफ शाहराहों और सड़कों पर फंसे हुए हैं, उनकी मदद करने की भी जो है कोशिश का सिलसिला जारी है। कराची के तमाम पुलिस के अजला जो है उसमें पुलिस की जानिब से जो है वो किरदार अदा किया गया और पानी में फंसे शहरियों को जो है वो निकाला गया। दूसरी जानिब शहरियों का दावा है कि एक तरफ बारिश हुई है, चेहरों पर मुस्कुराहट खिल उठी है, तो वहीं दूसरी जानिब इंतज़ामिया के जो किए गए दावे थे वो धरे के धरे रह गए हैं। अगर इसी तरह पानी की निकासी को आगे चलकर जो है वो यकीनी नहीं बनाया गया आने वाले रोज़ में, तो मज़ीद अगर बारिश इसी तरह रही तो पूरा शहर जो है मुकम्मल तौर पर डूब सकता है। जी बहुत शुक्रिया मुबशर, सलमान, शायान, राहील, मुमताज़ और शुएब मुख्तार, आप हमें शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अपडेट कर रहे थे। गुज़श्ता रोज़ तेज़ बारिश के बायस रात गए रनछोड़ लाइन में मखदूश इमारत मुनहदम हो गई। इमारत के मलबे में दबकर 2 अफराद जख्मी। इमारत 8 साल कबल मालिक ने खाली करा ली थी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। बारिश में मखदूश इमारतें शहरियों के लिए खतरा बन गई। सदर टाउन में रनछोड़ लाइन अलशिफा गली में गुज़िश्ता शब 2 मंजिला मखदूश इमारत मुनहदम। रात 4 बजे जोरदार धमाके से इमारत गिरी। इमदादी टीमों ने एक खातून समेत 2 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इलाका मकीनों का कहना है इमारत को 8 साल कबल मालिक ने खाली करा लिया था। इसके बाद नशा करने वालों ने इसमें रिहाइश अख्तियार कर ली थी। चलता हुआ रोड है, आने जाने वालों को भी तमाम लोगों को परेशानी होगी, किसी के ऊपर भी गिर सकती है, किसी की भी जान जा सकती है। बहुत सारे मसले मसाइल है, यहाँ पर निकाला नहीं आता। अभी भी देखे 2 बंदे अंदर बैठे हुए हैं, उनको निकालने नहीं है, कोई भगा रहे नहीं है। इलाका मकीन कहते हैं मुनहदम इमारत के साथ वाली बिल्डिंग भी मखदूश है, इदारे इसे मुनहदम करें। बाजू वाली भी इसके साथ जो बिल्डिंग बनी है नेक मोहम्मद बिल्डिंग, वो भी बिल्कुल गिरने के करीब है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं आता, ना इसको गिराता है, ना इसको सील करता है या कोई ऐसी बंद कर दे ताकि कोई आने जाने वाले हिफाजत हो। पीछे गली में भी इससे ज्यादा डेंजर है वो। रनछोड़ लाइन के मकीनों का मुतालबा है कि इलाके की मखदूश इमारतों को मुकम्मल तौर पर खाली कराया जाए ताकि कोई हादसा न हो। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। कराची की मार्केटें बरसाती पानी में डूब गईं, कारोबारी सरगर्मियां मफलूज। ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद ने लाखों के नुकसान का खदशा जाहिर कर दिया। मेडिसन मार्केट भी निकासी आब न होने पर बंद हो गई। काविश मेमन की रिपोर्ट। कराची की मुख्तलिफ मार्केटें बरसाती पानी की लपेट में आ गईं। ओल्ड सिटी एरिया की मरकजी मार्केटों में पानी दाखिल हो गया। इकबाल मार्केट, लतीफ आलम और गौसिया मार्केट समेत खारादर की तमाम मार्केटें बरसाती पानी में डूब गईं, जिसके बाद कारोबारी सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गईं। चेयरमैन ओल्ड सिटी ताजर इत्तेहाद एसएम आलम ने खदशा जाहिर किया कि ताजरों को लाखों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वो कह रहे हैं जी बारिश बहुत ज्यादा हुई ना, ठीक है बारिश बहुत ज्यादा हुई है। आप ये सूरत बताएं कि अभी हजारों दुकानें हैं, ये बंद पड़ी हुई है, दुकानों के अंदर पानी जा रहा है, तो इसका ऑलरेडी इंतजाम कौन करेगा? अब वो मेयर कराची करे, इलाके के एमएनए करवाए या यूसी चेयरमैन करवाए या टाउन चेयरमैन करवाए। अब ये देखें कि ये जो कल की बारिश है, कह रहे हैं आज उससे ज्यादा बारिश होगी। कितनी दुकानों में पानी घुस गया है, कितना माल खराब हो गया है। मतलब
परेशान हाल हुआ है। दूसरी जानब मेडिसन मार्केट में भी गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद नकासे आब का ना हो सकी। मार्केट ताहाल पानी में डूबी हुई है। शहरी बोले नाकिस नकासी आब बल्दिया उज़्मा कराची की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। अभी तक नहीं किया सफाई, जो कल से बारिश आया हुआ है गवर्नमेंट आया नहीं इधर अभी तक, तो सारा मुश्किल है, हम ये काम ही नहीं कर सकते। कल से मार्केट में पानी खड़ा हुआ है तो हम लोगों को मजबूरी है, फिर भी आते दाल रोटी तो कमाना है ना, मार्केट में आते इसी पानी में, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक आया ही नहीं। यहाँ पर मसला ये है कि जब भी बारिश होती है पानी बड़ा भरता है, लोगों का करोड़ रुपए का नुकसान होता है यहाँ पर, लेकिन हुकूमत यहाँ देखे, हम तो ये कहेंगे कोई स्पेशली तवज्जो दे इस इलाके पे। ये ओल्ड सिटी एरिया है जो पूरा पाकिस्तान का दिल कराची है, कराची का दिल जो है ओल्ड सिटी एरिया है, यहाँ पर इनको स्पेशली तवज्जो देनी चाहिए। ताजरों ने नकासी आब के फौरी इकदामात को नागुज़ैर करार दिया है और कारोबारी सरगर्मियां बंद होने से मुआशी तंगदस्ती का भी खदशा जाहिर किया है। अब खबर शामिल करें कारोबार के हवाले से तो आपको बताएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नई तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,51,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। स्टॉक मार्केट में कारोबार का इख्तिताम बुलंद तरीन सतह पर हुआ। 100 इंडेक्स में 820 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,50,591 पर बंद हुआ। दौरान कारोबार इंडेक्स ने 1,51,261 की रिकॉर्ड सतह को छुआ। सरमायाकारों के एतमाद में नुमाया बेहतरी देखी गई है। माहिरीन के मुताबिक मार्केट में ये तेजी मुआशी आशारियों में बेहतरी और सरमायाकारी के बढ़ते रुझान का नतीजा है।